Hello everyone, it's Shiv Kumar Sharma, Nursing Officer, AIMS New Delhi, and I welcome you all to the brand new lecture. And the topic of the lecture of today is conductive system of the heart. Conductive system of the heart. पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात करी कि हार्ट की जो एनाटॉमी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे जो कंडक्शन है, जो दिल का धड़कना है, उस कंडक्शन की प्रोसेस को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जब मैं बोलता हूँ कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट, तो वो मेरा रेफरेंस क्या होता है? विच रेफर्स दैट द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट, इट रेफर्स टू द it refers to the electrical changes electrical changes that took place that took place into the conductive system. It refers to the electrical changes that took place into the conductive system or in the conductive cell conductive cell in the form of in the form of action potential. It refers to the electrical changes that took place into the conductive system or in the conductive cells in the form of action potential. तो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट क्या है? एक ऐसा इलेक्ट्रिकल चेंजेस हो रहा है कंडक्टिव सेल्स में, पेसमेकर सेल्स में एक ऐसा इलेक्ट्रिकल चेंजेस हो रहा है जो कि जो कि रिस्पॉन्सिबल है जो कि रेस्पॉन्सिबल है हार्ट को बीट कराने के लिए, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए। वो क्या है? वही है कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट वन इज, अपन डेफिनेशन से ही वर्ड को उठाते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्शन पोटेंशियल। व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? एक्शन पोटेंशियल क्या है? जब मैं ये बोलता हूं तो आपको समझना चाहिए कि एक्शन पोटेंशियल इज द synchronized synchronized electrical changes synchronized electrical changes across the across the cell membrane across the cell membrane in a rapid rapid and mobile manner. Action potential is the synchronized electrical changes across the cell membrane in a rapid and mobile manner. Action potential क्या है? इसे electrical changes in a synchronized and rapid. It's very rapid in nature, very rapid, takes only few point 1 second, less than point 1 second. The duration is
point more less than 0.1 second in a rapid and mobile manner. अब बात करते हैं जो कंडक्शन हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जो कंडक्शन हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो रही है, उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से जनरेट हो रही है। जैसे आपके घर में बिजली आती है तो उसका भी एक सोर्स होता है, उसी तरीके से हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है तो वो भी कहीं ना कहीं से जनरेट हो रही होगी, उसका भी कोई सोर्स होगा, उसका भी कोई ओरिजिनेशन होगा। तो अब अपन बात करते हैं द ओरिजिनेशन या फिर द सोर्स। मैं लिखूंगा द स्मॉल the small and highly specialized cells, the small and highly specialized cell which are present, which are present, the small and highly specialized cells which are present in the myocardium layer of the heart, which is having, which is having neuromuscular nature, neuromuscular nature, and which are only 1% of the heart. The highly specialized neuromuscular cells which are present in the myocardium layer of the heart, which which are highly specialized in nature and only 1% and covers only 1% of the heart tissue. तो क्या है, जो कंडक्टिव सेल्स है, जो पेसमेकर सेल्स है, वो क्या है, हाईली स्पेशलाइज्ड इन नेचर है। हाईली स्पेशलाइज इन नेचर का मतलब है ऑटो रिदमिसिटी। इनके पास क्या है, ऑटो रिदमिसिटी है। ऑटो रिदम को वो ऑटोमेटिकली खुद से ओन से जनरेट कर सकते हैं, वो क्या है, ऑटो रिदमिसिटी है। एंड ऑक्यूपाइज एंड कवर्स ओनली 1% ऑफ द हार्ट। द स्मॉल एंड highly specialized cells neuromuscular in nature present in the myocardium of the heart, present in the myocardium of the heart, which which have autorhythmicity, are the pacemaker cells of the heart, are called are called pacemaker cells of the heart। कोई आपसे पूछे कि पेसमेकर सेल्स ऑफ द हार्ट क्या है, कंडक्टिव सेल्स ऑफ द हार्ट क्या है, तो आप कहेंगे द the small group of cells, the small group of cells which are highly specialized in nature, present in the myocardium layer of the heart, present in the myocardium layer of the heart, which covers only 1% of the heart and owns autorhythmicity, are called pacemaker of the heart, pacemaker cells of the heart and conductive cells of the heart। अब मैंने आपको बताया कि जो पेसमेकर सेल्स है, कंडक्टिव सेल्स जो है, इट्स कवर ओनली 1% ऑफ द हार्ट। जो 1% ऑफ द हार्ट है, ओनली वो क्या है,
पेसमेकर सेल्स, पेसमेकर सेल्स। तो 99% जो रह जाता है उन पे वो अपना डोमिनेंसी शो करती है, अपनी ऑक्यूपेंसी शो करती है। माइनॉरिटी है 1% जो कि कंट्रोल कर रही है 99% को, मेजॉरिटी को कंट्रोल कर रही है, कंडक्ट करवा रही है। वो क्या है? पेसमेकर सेल्स है। तो पेसमेकर सेल्स ओनली कवर्स ओनली 1% ऑफ द हार्ट बट कंट्रोल्स ओवर द 99% ऑफ द हार्ट। डोमिनेंस ओवर द हार्ट इज बाय पेसमेकर सेल्स ऑफ द हार्ट। जो पेसमेकर सेल्स है, जो पेसमेकर सेल्स हैं उनमें ऑटो रिदमिसिटी प्रेजेंट है। मतलब इसका मतलब ये है, जब मैं कहता हूं ऑटो रिदमिसिटी, इट मींस इट रेफर्स टू दैट जो पेसमेकर सेल्स है उन्हें किसी और इन्फ्लुएंस की नीड नहीं है। उन्हें किसी और इन्फ्लुएंस की नीड नहीं है कि वो किसी और पर डिपेंड हो। वो अपनी बीट खुद जनरेट कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है? ऑटो रिदमिसिटी, खुद अपनी बीट को ओरिजिनेट कर पाना, उन्हें कंडक्ट कर पाना। दिस इज कॉल्ड पेसमेकर सेल्स ऑफ द हार्ट। इसमें पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स का सप्लाई तो होता है, हार्मोनल इन्फ्लुएंस भी होता है, बट दे डोंट नीड any other influence. They can generate their impulses on their own. तो आप देख सकते हैं मैंने एक डायग्राम पहले से ही ड्रॉ किया हुआ है जिसमें आपको मैं इलिस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश करूंगा कि जो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट है कैसे सिचुएटेड है और कैसे उसका कंडक्शन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं ऐसे नोड, ऐसे नोड इज प्रेजेंट, ऐसे नोड, ऐसे नोड which is present near the opening of superior vena cava, near the opening of superior vena cava in the right atrium। जो राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा की जो ओपनिंग है उसी के पास में एक नोड प्रेजेंट होता है, एक ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती है। उसको आप क्या बोलते हो? ऐसे नोड या साइनो एट्रियल नोड। उसके बाद this is called AV node, atrioventricular node। AV node is present is present near the atrioventricular septum, near the atrioventricular septum at the atrioventricular valve, near the atrioventricular valve। अब इसके बाद जो डिवाइडेशन है एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ, या फिर मैं बात करूंगा पहले इंटर एट्रियल ट्रैक्ट। इंटर एट्रियल ट्रैक्ट जो है, इंटर एट्रियल ट्रैक्ट जो है वो क्या है? पेसमेकर सेल्स जो कि प्रेजेंट है लेफ्ट एट्रियम में। पेसमेकर सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द
Left atrium is called interatrial tract और Buckman tract। जो ऐसे नोड से एवी नोड तक के जो बंडल है, जो फाइबर्स है, दीज आर कॉल्ड इंटरनोडल ट्रैक्ट। दीज आर इंटर एट्रियल ट्रैक्ट एंड दिस इज इंटरनोडल ट्रैक्ट। एवी नोड सप्लाइज, जो एवी नोड है उसका काम क्या है? एवी नोड जस्ट मेयरली ट्रांसमिट द एवी नोड जस्ट मेयरली ट्रांसमिट द इम्पल्सेस फ्रॉम द एट्रियम टू द वेंट्रिकल। तो एवी नोड का सिंपल सा एक काम है, वो क्या करता है, जो एट्रियम से जो एट्रियम से इम्पल्सेस आ रही है उनको वेंट्रिकल की तरफ ट्रांसमिट कर देता है। बट बट यहाँ पर ए लिटिल ऑफ टाइम 0.1 सेकेंड 0.1 सेकेंड का डिले आता है। एवी नोड में एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में जाने के लिए इम्पल्सेस में 0.1 सेकेंड का माइनर सा एक डिले होता है। उसको अपन कार्डियक साइकिल के अंदर डिस्कस करेंगे। बंडल ऑफ हिस, एवी नोड के बाद जो ब्रांच है या फिर जो पार्ट है कंडक्टिव सिस्टम का, दिस इज कॉल्ड बंडल ऑफ हिस या एवी बंडल। AV bundle further divided into two parts: right bundle branches and left bundle branches। जो लेफ्ट बंडल एंड राइट बंडल ब्रांचेस हैं, जब वो वेंट्रिकल की मायोकार्डियम में जाते हैं तो वहां से फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं, जनरेट होते हैं या निकलते हैं। उन्हीं को आप क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर्स। जो ऐसे नोड है जो ऐसे नोड है वो क्या करता है? अनस्टेबल होता है। उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडीशन है या इलेक्ट्रिकल जो उसकी चार्जेस है वो अनस्टेबल है। उसी के कारण क्या है, वो कॉन्टिन्यूअसली बीट करता रहता है या इम्पल्स जनरेट करता रहता है। इसी कारण से उसको क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो पेस मेकर ऑफ द हार्ट क्या है? ऐसे नोड। और इसकी जो फायरिंग वैल्यू है फायरिंग वैल्यू फायरिंग वैल्यू ऑफ ऐसे नोड इज 60 to 100 बीट्स पर मिनट। इसी तरीके से मैं बात कर लूं फायरिंग वैल्यू ऑफ एवी नोड, वो कितना है? 40 to 60 बीट्स पर मिनट। अब ऐसा तो अपन ने बोल दिया है कि पेस मेकर ऑफ द हार्ट ऐसे नोड है, पर ऐसा नहीं है कि ओनली एंड ओनली ऐसे नोड ही आपकी जो हार्ट की जो बीट है वो इम्पल्स को जनरेट करा सकता है। नहीं, जो हार्ट का पूरा कंडक्टिव सिस्टम है वो पूरा का पूरा एबल है, सक्षम है। वो ये कर सकता है कि वो हार्ट को बीट करवा सकता है, बट उसका जो टाइम ड्यूरेशन है या फिर उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यहाँ पर अगर ये फेल भी हो जाए तो हार्ट के पास प्लान बी नहीं है, प्लान सी भी है, प्लान डी भी है। प्लान बी क्या है? एवी नोड। अगर ऐसे नोड फेल होता है तो प्लान बी काम करता है एवी नोड, जिसकी फायरिंग वैल्यू क्या है? 40 से 60 बीट्स पर मिनट। उसी के साथ साथ बंडल ऑफ हिज एंड परकिंजे फायर भी एबल है इमरजेंसी होने पर, या फिर कुछ भी ऐसा हो जाए कि ऐसे नोड एंड एवी नोड्स आर नॉट केपेबल टू प्रोड्यूस impulses or to generate impulses, then they can work but their value will be low। अब हम बात करेंगे कि जो इम्पल्स जनरेट होती है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पासेस होते हैं या फिर जो कंडक्शन होता है, जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस आते हैं सेल मेम्ब्रेन में, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, या एक्शन पोटेंशियल जो होता है, अब हम उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैं
कंडक्टिव सेल्स या पेसमेकर सेल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अपन यहाँ पर दो शब्द आने वाले हैं, उनको आप पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। पहला है डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। जो आपकी पेसमेकर सेल्स है या जो मायोसाइट्स है, जो मायोसाइट्स है, अभी हम बात करेंगे पेसमेकर या पेस इंडक्शन या एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल हेडिंग आप डाल सकते हैं, एक्शन पोटेंशियल इन द मायोसाइट्स। एक्शन पोटेंशियल इन द मायोसाइट्स। जो मायोसाइट्स है, जो मायोकार्डियम की जो सेल्स है, उसमें एक्शन पोटेंशियल कैसे होता है, अभी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसको समझने से पहले अपन डिस्कस करेंगे डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन क्या है, दोनों में क्या अंतर है। तो मैं बात करता हूँ एक मायोसाइट की, जो कि अभी रेस्टिंग स्टेट में है। रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, जो मायोसाइट्स होता है, मायोसाइट जो होता है रेस्टिंग स्टेज में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव में होता है। -90 मिली वोल्ट। ये एक रेस्टिंग मायोसाइट का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। मतलब एट द टाइम ऑफ द रेस्ट जो मायोसाइट्स है वो क्या है, माइनस नेगेटिवली चार्ज्ड है। जो उसके किसके अपेक्षा, एट नेगेटिवली चार्ज्ड है, और जो पॉजिटिव आयंस है वो ज्यादा है एक्स्ट्रा सेल्यूलरली अपेक्षाकृत मायोसाइट्स के। ठीक है। तो डीपोलराइजेशन क्या है, डीपोलराइजेशन इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस by which cation cation influx cation influx in the cell cation influx in the cell and charge the cell positively। जबकि रिपोलराइजेशन क्या है, repolarization is the process, it is the process, it is the process by which the cation मतलब पॉजिटिव आयन, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, positively charged ion efflux and the cell regain its polarity। It is the process by which the cation मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, वो आयन जिन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो क्या होंगे, इफ्लक्स होंगे, एंड द सेल रिगेन इट्स पोलैरिटी। यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स। इनफ्लक्स का मतलब होता है किसी भी आयन का सेल के अंदर प्रवेश कर जाना, एंट्री कर जाना, वो क्या है, इनफ्लक्स। इन मतलब एंटर करना, और ई फ्लक्स मतलब एग्जिट कर जाना, उसे आप क्या बोलोगे, ई फ्लक्स।
तो डीपोलराइजेशन क्या है? डीपोलराइजेशन का मतलब है सेल ने अपनी पोलैरिटी को खो दिया है। जो सेल है उसने अपनी पोलैरिटी को खो दिया है। कैसे कैसे खोया? जो पॉजिटिव आयन प्रेजेंट थे एक्स्ट्रा सेलुलरली, वो एंटर कर गए सेल के अंदर, जिससे सेल पॉजिटिवली चार्ज होती चली गई। सेल पॉजिटिवली चार्ज होती चली गई और क्या हुआ? उसकी पोलैरिटी उसने खो दी। उसी को आप क्या बोलोगे? डीपोलराइजेशन। और रिपोलराइजेशन क्या है? रिपोलराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द कैट आयन, द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इफ्लक्स, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे वो आउटवर्ड मूवमेंट कर जाएंगे। उसी को आप क्या बोलोगे? रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन मतलब द प्रोसेस बाय विच सेल्स रीगेन इट्स पोलैरिटी विच इज कॉल्ड रिपोलराइजेशन। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं एक्शन पोटेंशियल कैसे काम करता है, या एक्शन पोटेंशियल प्रोसेस कैसे होती है। तो मैंने आपको बताया एट द टाइम ऑफ रेस्टिंग फेज, at the time of resting phase, the voltage of the myocyte is minus 90 millivolt। मतलब at the time minus 90 milli, at the time of rest the myocyte is negatively charged, negatively charged है। वो कितना है उसका चार्ज? माइनस 90 मिली वोल्ट। अब प्रॉपर या फिर एप्रोप्रिएट स्टिमुलेशन मिलने पर, एप्रोप्रिएट स्टिमुलेशन मिलने पर, एप्रोप्रिएट स्टिमुलेशन मिलने पर क्या होगा? जो माइनस 90 मिली वोल्ट है, सेल्स के अंदर कैटायंस का प्रवेश होगा। द कैटायन विल एंटर इन द सेल्स। क्या? सोडियम। सोडियम जो होगा एंटर करेगा सेल के अंदर, और ये जो माइनस 90 मिली वोल्ट है, माइनस 90 मिली वोल्ट जो है वो कम होता चला जाएगा। जैसे ही इसको अप्रोप्रिएट स्टिमुलेशन मिला, वो कैसे मिलेगा? कुछ कैटायंस प्रवेश करेंगे, एंटर करेंगे अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इनटू द मायोसाइट्स, इनटू द मायोसाइट्स। तो क्या होगा? जो सोडियम है, जो कैटायन सोडियम है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट है, वो एंटर कर गया मायोसाइट में। और क्या हुआ? और क्या हुआ? जो माइनस मिली वोल्ट, माइनस 90 मिली वोल्ट है, वो पोलराइजेशन क्या होगा? कम होता चला जाएगा। मतलब जो सेल होगी पॉजिटिविटी की तरफ जाने लग जाएगी, मतलब डीपोलराइजेशन की तरफ जाने लगेगी। जो माइनस एट द टाइम ऑफ माइनस 70 मिली वोल्ट, माइनस 70 मिली वोल्ट, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। जो माइनस 70 मिली वोल्ट है उसे आप क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल गेन करेगी एक सेल, तो क्या होगा? वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज गेटेड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल जाएगा एट द माइनस 70 मिली वोल्ट, जो कि थ्रेशोल्ड है, जो कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। वहां पर क्या होगा? जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है जो अभी तक बंद थे, वो सडनली ओपन हो जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम है वो एंटर कर जाएगा, वो एंटर कर जाएगा इनटू द मायोसाइट्स, इनटू द मायोसाइट्स।
तो क्या होगा, सेल की पोलैरिटी और कम होती चली जाएगी और सेल और सेल पॉजिटिवली चार्ज होती चली जाएगी। तो सेल ने क्या कर लिया, पॉजिटिविटी को गेन कर लिया। तो एट द टाइम ऑफ 0 मिलीवोल्ट, एट द टाइम ऑफ 0 मिलीवोल्ट, एट द जीरो या फिर एट द +10 मिलीवोल्ट, at the time of +10 millivolt, the voltage gated voltage gated sodium and sodium potassium and potassium and calcium channel will open। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो इंट्रा सेलुलर कैटायन है वो मोस्टली क्या होता है, पोटाशियम होता है। इंट्रा सेलुलर जो कैटायन है वो क्या होता है, पोटाशियम होता है। तो जैसे ही वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल ओपन होंगे तो क्या होगा, पोटेशियम का पोटेशियम का ई फ्लक्स होगा, तो पोटेशियम बाहर चला जाएगा। पोटेशियम बाहर जाने लगेगा एंड द कैल्शियम calcium will enter into the cell, बट जो कैल्शियम गेटेड चैनल है वो कम है और पोटाशियम गेटेड चैनल जो है वो ज्यादा है। तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसके कारण क्या होने लगेगा, जो पोटाशियम ज्यादा आउटवर्ड निकल रहा है या फिर पोटेशियम का ई फ्लक्स ज्यादा हो रहा है, उसके कारण क्या होगा, जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे फिर से नेगेटिव होने लगेगा। तो क्या होता है, कैल्शियम पोटाशियम चैनल खुल जाता है तो पोटाशियम का ई ई फ्लक्स होने लग जाता है। ई फ्लक्स मतलब पोटाशियम इंटरसेलुलर जो पोटाशियम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंटर कर जाता है, या मतलब पोटेशियम का आउटवर्ड मूवमेंट होता है। जबकि जबकि जो कैल्शियम है वो एक्स्ट्रा सेलुलरली ज्यादा है। तो आपसे कोई पूछे इंट्रा सेलुलरी मोस्ट अबंडेंट कैटायन क्या है, तो आपका आंसर होगा पोटेशियम।
जबकि एक्स्ट्रा सेलुलरली की बात करें तो वहां क्या आंसर आएगा, कैल्शियम। जो कैल्शियम चैनल है उसके द्वारा कैल्शियम एंटर करेगा मायोसाइट्स में और मेंटेन करने की कोशिश करेगा किसको, इस पोटेंशियल को। तो एक ऐसा समय आएगा जब इफ्लक्स एंड इनफ्लक्स दोनों का वैल्यू सेम होगा। इफ्लक्स एंड इनफ्लक्स दोनों का वैल्यू सेम होगा। दोनों का वैल्यू सेम होगा, बट पोटाशियम चैनल ज्यादा है, कैल्शियम चैनल कम है। तो क्या होगा, एट द टाइम पासिस बाय, एट द टाइम पासिस बाय द वोल्टेज ऑफ सेल्स विल डिमिनिश, वो कम होता चला जाएगा। एंड cell will get its polarity again. Cell will get its polarity again. This is called plateau. Plateau phase. Plateau phase एक ऐसा phase है जहां पर influx and efflux of the cations are equals in number, but it is a short time duration period. So this is how a cell polarize and depolarize. But here are the interesting fact, or here are the interesting thing is, जो एडजेसेंट सेल्स है मायोसाइट्स के, जो एडजेसेंट सेल्स है वहां पर प्रेजेंट है गैप जंक्शन। वहां क्या प्रेजेंट है, गैप जंक्शन। दीज आर कॉल्ड गैप जंक्शन। इस गैप जंक्शन के द्वारा जो पॉजिटिव आयन प्रेजेंट थे इस मायोसाइट में, जो पॉजिटिव आयन प्रेजेंट थे इस मायोसाइट में, वो एडजेसेंट मायोसाइट में या नेबरिंग मायोसाइट में, जो पड़ोसी कोशिकाएं जो है मायोसाइट्स की, उनमें एंटर कर जाएंगे। ये क्या है, सोडियम विल एंटर, सोडियम विल एंटर into the adjacent और neighboring cells. So तो इसको अलग से स्टिमुलेशन नहीं चाहिए। पास की जो सेल्स है, नेबरिंग जो सेल्स है, पड़ोसी कोशिकाएं जो हैं एक मायोसाइट्स की, उन्हें अलग से एक स्टिमुलेशन नहीं चाहिए अपनी कंडक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए। जैसे ही एक सेल डीपोलराइज होगी तभी कुछ कैटायंस प्रवेश कर जाएंगे एडजेसेंट मायोसाइट्स में, एडजेसेंट सेल्स में, जो क्या करेंगे आगे वाली कोशिकाओं में इसी डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन को स्टार्ट करवा देंगे। अभी अपन ने बात करी सिंगल मायोसाइट्स में जो एक्शन पोटेंशियल हुआ उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। अब अपन बात करेंगे सिंगल पेस मेकर में। तो लास्ट अपन ने डिस्कस किया एक्शन पोटेंशियल इन द मायोसाइट। अब अपन बात करेंगे एक्शन पोटेंशियल इन द पेस मेकर सेल्स और कंडक्टिव सेल्स। जो कंडक्टिव सेल्स है, जो आपकी कुदरत की कारीगरी कह लो, यूनिवर्स का ट्रूथ कह लो, या फिर जो भगवान की कारीगरी है वो आप उसको कह सकते हैं, वो यहाँ काम आती है। उसका जो मतलब इसका कोई कारण नहीं है कि कैसे कैसे कुछ फनी या फिर कुछ लीकी गेट्स प्रेजेंट होते हैं इन द पेसमेकर सेल्स, जो कि
स्टिमुलेट कर देते हैं, जो कि स्टिमुलेट कर देते हैं एक्शन पोटेंशियल को, जो कि स्टिमुलेट कर देते हैं एक्शन पोटेंशियल को, जो कि कारण बनता है आपकी हार्ट बीट का, आपकी दिल की धड़कन का। ध्यान देना, वहां हमने बात करी थी -90 मिली वोल्ट, यहाँ जो पोटेंशियल रहता है वो होता है -65 मिली वोल्ट। -65 मिली वोल्ट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन द पेसमेकर सेल्स। अब यहाँ पर लीकी चैनल लीकी चैनल लीकी चैनल प्रेजेंट होते हैं एट द मेम्ब्रेन ऑफ पेसमेकर सेल्स, थ्रू विच cation, positively charged cation enters, through which positively charged cation enters and depolarize the pacemaker cell। अब एट द टाइम जब ये वोल्ट -50 मिली वोल्ट को क्रॉस करता है, तो वहां पे कितना था -70, यहाँ कितना रहेगा -50 मिली वोल्ट थ्रेशोल्ड रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, HCN चैनल, यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, HCN चैनल। HCN का मतलब क्या है, हाइपर हाइपर पोलराइज्ड एक्टिवेटेड साइक्लिक साइक्लिक गेटेड चैनल। तो अभी अपन बात करते हैं जो एक्शन पोटेंशियल है जो कि पेसमेकर में जनरेट होगा, वो कैसे होता है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है। जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट होगा यहाँ से, जो पेसमेकर सेल्स है, जो कंडक्टिव सेल्स है हार्ट का, या फिर एक ऐसे नोड से मैंने एक सेल को निकाल लिया, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे ऐसे नोड की एक सेल्स इम्पल्स को जनरेट करती है। जो लीकी चैनल प्रेजेंट होते हैं जो लीकी चैनल प्रेजेंट होते हैं पेसमेकर्स की वॉल्स पे या मेम्ब्रेन पे, वो क्या होते हैं, HCN हाइपर पोलराइज एक्टिवेटेड साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल। यही कुदरत का करिश्मा है, यही भगवान की कारीगरी है, या फिर यही यूनिवर्स का ट्रूथ है। HCN हाइपर पोलराइज्ड एक्टिवेटेड साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल, जो लीकी चैनल है वो प्रेजेंट है पेसमेकर सेल्स की वॉल्स पे, जिसके कारण क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन है ऑटोमेटिकली एंटर कर जाता है पेसमेकर की सेल्स में। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो है -65 मिली वोल्ट। अब जैसे ही कैटायन एंटर्स करते हैं पेसमेकर की सेल्स में, तो जब -50 मिली वोल्ट पे पहुंचता है थ्रेशोल्ड, तो उसे अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। और उस टाइम वोल्टेज गेटेड वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है और थ्रेशोल्ड जो होता है वो पहुंच जाता है +10 मिली वोल्ट पर। जो थ्रेशोल्ड है वो पहुंच जाएगा +10 मिली वोल्ट पर। जैसे ही +10 मिली वोल्ट थ्रेशोल्ड पहुंचता है, उसके बाद जो वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल है ओपन हो जाता है, और
वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो जाता है और कैल्शियम गेटेड चैनल क्लोज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सडन सडन रिपोलराइजेशन होता है सेल्स का, और सेल दोबारा से रिपोलराइज हो जाती है। तो इस तरीके से पेसमेकर की सेल्स में कंडक्शन होता है या फिर एक्शन पोटेंशियल होता है, जो अपन ने लास्ट डिस्कस किया कि मायोसाइट्स में कैसे होता है। दोनों के ग्राफ को आप डिफरेंट करने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे यह है टाइम, यह है वोल्टेज। मेम्ब्रेन मेम्ब्रेनस वोल्टेज। जो पेसमेकर की सेल्स है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है, जबकि जबकि मायोसाइट्स में एक्शन पोटेंशियल को आप जब पढ़ोगे तो आप पाओगे एक प्लेटू फेज बीच में आता है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो दोनों में डिफरेंस है। जो पेसमेकर का सेल है उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, जबकि जो मायोसाइट्स है उसमें एक प्लेटू फेज बीच में आ जाता है, जिसके कारण जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा दिखेगा। इसी के साथ कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट, एक्शन पोटेंशियल ऑफ द हार्ट अपन ने डिस्कस किया। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ मैं आपसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट सब करें मेरे इस वीडियो को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।